Hello students, this is Professor Abhishek Jadhav. Now in last lecture we learned the type number 1, that is basic standard integration problems, double integration problems. Now in type 2 we learn the change of order and evaluate. So for this we have to know the standard equations. So first basic curve, first is straight line. Now first equation of straight line is not passing through origin, that is ax plus by plus c equal to 0. A and b are the coefficient of x and y. Second, passing through origin, that is ax plus by equal to 0. Number third, line parallel to y-axis, that is ax plus c equal to 0 or x equal to constant, that is vertical line. Vertical line means which is parallel to y-axis. Number fourth, line parallel to x-axis, that is by plus c equal to 0 or y equal to constant, that is horizontal line which is parallel to x-axis. Number 5, y equal to x or x minus y equal to 0, that is 45-degree line, and y equal to minus x, that is x plus y equal to 0 minus 45-degree line. So these are the possible 6 equations of straight line. Now comes to next part, that is circle. Circle, there are three equations. First is standard equation, that is x square plus y square equal to a square, where center is origin and radius is a. Second is general equation, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, where center is minus g comma minus f and the radius is under root of g square plus f square minus c. Number third, center radius form, that is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to a square, where center is h comma k and radius is a. Now come to next, that is parabola. There are 4 equations in parabola. First is y square equal to 4ax, which is rightward parabola, which is passing through origin. If it is not passing through origin, means it is y minus k the whole square plus 4 into a into x minus h, where h and k are the vertex of parabola. Second, left hand side parabola, y square equal to minus 4x. Plus sign indicate right side, minus sign indicate left side parabola. And this is passing through origin. And second, y minus k the whole square equal to minus 4a into x minus h, where vertex is h comma k. Number third, upward parabola, x square equal to 4ay, again passing through origin, and x minus h the whole square equal to 4a into y minus k. H and k are the vertex. Number fourth, x square equal to minus 4ay, downward parabola, passing through origin, and this is x minus h the whole square equal to minus 4a into y minus k, where h and k are the vertex. These are the 4 types of parabola. Next is ellipse. Ellipse, there are 2 equations. First, x square by a square plus y square by b square equal to 1, where a is greater than b, means a is major axis and b is minor axis. Second, x square by a square plus y square by b square equal to 1, same equation, but here b is major axis and a is minor axis. Now second, hyperbola. This is x square by a square minus y square by b square equal to 1, and second, y square by b square minus x square by a square equal to 1. And last, that is rectangular hyperbola, xy equal to c, and here xy equal to minus c. So these are the standard equations of parabola, standard equations of curve, right? Now first problem of type 2, that is change the order and evaluate. Okay, now first problem, this is very important type. चेंज द ऑर्डर, इसके ऊपर एक सम कन्फर्म आएगा 6 मार्क्स. एंड इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to 4 minus x square x into e raised to 2y upon 4 minus y dy dx. सो फ्रेंड्स, डबल इंटीग्रेशन. नाउ इसमें फर्स्ट अपर इंटीग्रेशन, दैट इज आउटर इंटीग्रेशन, इज नथिंग बट मोशन ऑफ द स्ट्रिप, एंड लोअर इंटीग्रेशन, दैट इज इनर इंटीग्रेशन, इज नथिंग बट योर स्ट्रिप. अभी इनर इंटीग्रेशन
में वेरिएबल रहेगा, इफ वेरिएबल इज एक्स रहेगा मीन्स इट इज़ वाई का लिमिट्स, इफ इट इज़ वाई का लिमिट्स देन अपर वाला आउटर वाला इज एक्स का लिमिट. सपोज इनर इंटीग्रेशन में इफ इट इज़ वाई का लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ वाई देन इट इज़ एक्स का लिमिट हो गया, और फिर अंदर का एक्स रहेगा तो बाहर का वाई रहेगा. ये ध्यान में रखो. अभी ये मोशन, ये स्ट्रिप का जो मोशन है, इफ सपोज वो एक्स एक्सिस पे रहेगा तो स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल मूव करेगा अप डाउन, और वाई पे रहेगा तो स्ट्रिप लेफ्ट एंड राइट मूव करने वाला है. तो अभी सपोज फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल नहीं, फॉर एग्जांपल सपोज मेरा स्ट्रिप वर्टिकल है तो उसने बोला चेंज ऑर्डर, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करना है. इफ़ मेरा स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है और चेंज ऑर्डर बोला रहेगा तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल मूव करना है. दैट इज नथिंग बट यूर टाइप नंबर 2. ठीक है. नाउ फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कैसे लिखने का देखो सॉल्यूशन. फर्स्ट इज आउटर इंटीग्रेशन. नाउ इन आउटर इंटीग्रेशन व्हाट इज माय लोअर लिमिट. अभी ये देखो, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है, मतलब ये वाई का लिमिट है, और ये वाई का लिमिट है तो बाहर का लिमिट एक्स का रहेगा. सो लोअर लिमिट इज एक्स इक्वल टू 0, राइट है. दैट इज नथिंग बट ऑन वाई एक्सेस. अपर लिमिट क्या रहेगा, अपर लिमिट इज एक्स इक्वल टू 2, दैट इज एक्स इक्वल टू मतलब इट इज वर्टिकल लाइन, राइट. नाउ इनर में व्हाट इज लोअर लिमिट, lower limit is y equal to 0, means it is on x axis. And what is my upper limit, upper limit is y equal to 4 minus x square. अब इसको एडजस्ट करना है. तो ये x square को मैं इधर लेके आया तो x square is equal to 4 minus y. ये कौन सा इक्वेशन हो गया, दैट इज नथिंग बट पैराबोलिक इक्वेशन. तो देखो इधर x square इक्वल टू 4 minus y, तो इसको एडजस्ट करो. सो इधर क्या आएगा, x minus 0 द होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन कॉमन y minus 4. So this is the downward parabola. Compare with x minus h the whole square minus 4a into y minus k. So what is my vertex? Vertex h comma k is equal to 0 comma 4. This is my vertex. तो ये कौन सा पैराबोला हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला. सो इससे मेरे को x मिलेगा. व्हाट इज x, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 minus y, right. Now how to draw diagram, which is very very important. Now check करो डायग्राम में कैसे निकालना हो. This is y axis, this is x axis, this is y axis. Now मेरे को कौन सा पैराबोला मिला है, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, राइट है. अभी सपोज मैंने इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया, ये x इक्वल टू 0 है, ये मैंने इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे को क्या मिलेगा, y इक्वल टू 4. सो y इक्वल टू 4 एंड मतलब वर्टेक्स कितना मिला, 0,4. तो 0,4 यूज योर वर्टेक्स. इससे आप डाउनवर्ड पैराबोला निकालो. तो ये कैसे आएगा डाउनवर्ड पैराबोला, दिस इज नथिंग बट योर डाउनवर्ड पैराबोला. दिस इज द वर्टेक्स 0,4. अभी ये पॉइंट निकालने के लिए मेरा जो ये y है, y इक्वल टू 0, ये इसमें पुट करो. अभी मैंने y इक्वल टू 0 इसमें पुट किया तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा. x इक्वल टू 4 मीन्स वॉट, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 मतलब दिस इज द पॉइंट दैट इज -2,0 एंड दिस इज द पॉइंट इज 2,0. और मेरे को ऑलरेडी एक x इक्वल टू एक वर्टिकल लाइन है. सो x इक्वल टू मतलब ये वर्टिकल लाइन होगी. दिस इज x equal to 2 is the vertical line. Then this is y equal to 4. This is the horizontal line because y equal to 4 है, राइट है. नाउ तुम लोग को जो स्ट्रिप दिया है उसका मोशन क्या है, x इक्वल टू 0 to 2, राइट है. मतलब ये स्ट्रिप कैसे रहेगी, वर्टिकल रहेगी, मूव हो रही है. x इक्वल टू 0 to 2. सो ये वर्टिकल स्ट्रिप विच इज़ गिवन. अभी इसमें आपका क्लोज पाथ कौन सा है, क्लोज इंटीग्रल पाथ. दिस इज योर पाथ, ये क्लोज इंटीग्रल पाथ है. इसमें ये तुम लोग को वर्टिकल स्ट्रिप दी है, बराबर से देखो ये स्ट्रिप, दिस इज योर स्ट्रिप. देखो अभी वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये जो स्ट्रिप है ये विच इज़ गिवन, देखो अभी स्ट्रिप कैसे मूव होएगी, ये स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप है, कैसे मूव हो रही है, इधर से उधर, इधर से इधर. तो इधर उसका लिमिट क्या रहेगा, इधर है मतलब वो y एक्सिस पे है, मतलब x इक्वल टू 0. देखो x इक्वल टू 0 और इधर जा रही है मतलब किधर जा रही है, इधर तक जाएगी. इधर कितना x है, x इक्वल टू 2. देखो दैट इज x इक्वल टू 2. सो इट इज़ द मोशन विच इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट.
अभी इसका स्ट्रिप का रीजन देखो, ये किधर कनेक्टेड है, एक्स एक्सिस पे, मतलब वाई क्या रहेगा 0, देखो वाई इक्वल टू 0 है। और ये किधर कनेक्टेड है, ये पैराबोला को कनेक्ट है। ये पैराबोला का इक्वेशन क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई और वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर इक्वेशन। तो अभी ये स्ट्रिप वर्टिकल है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, टेकिंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, बिकॉज चेंज ऑर्डर बोला है उसने, तो मैं क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करेगा अभी इधर। दिस इज योर स्ट्रिप जो अभी हम लोग को लेने का है, इसका एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं, अभी इधर लिखता हूँ टेकिंग न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अभी सबसे इम्पोर्टेंट आई इक्वल टू, अभी ये जो था ये एक्स में था, दिस इज एक्स और दिस इज वाई, अभी ये चेंज होने वाला है बिकॉज मैंने अभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर किया है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में मोशन किस में रहेगा, वाई इक्वल टू, तो अभी किधर से किधर मूव हो रही है, देखो ये स्ट्रिप है नीचे से ऊपर जा रही है, तो नीचे मतलब एक्स एक्सिस में मतलब वाई इक्वल टू 0 और ऊपर कितना है, वाई इक्वल टू 4। तो मेरा मोशन क्या रहेगा, वाई इक्वल टू 0 to 4 एंड इनर स्ट्रिप, अभी स्ट्रिप चेक करो किधर है, ये स्ट्रिप इधर है, इसका लोअर ये, तो ये किधर है, वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स क्या रहेगा, एक्स इक्वल टू 0, राइट है। और ये किधर है, ये पैराबोला पे है। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, देखो इन टर्म्स ऑफ एक्स में निकाला है, एक्स इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई, सो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई, अंदर का पार्ट एज इट इज़, दैट इज एक्स इन टू ई रेज टू 2y अपॉन 4 माइनस वाई डी वाई डी एक्स। इधर तक किया तो प्रॉब्लम तुम लोग का ख़त्म। इसके बाद अभी नॉर्मल इंटीग्रेशन निकालना है। सो ये निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गिवन स्ट्रिप इज वर्टिकल, दैट इज गिवन, चेंज ऑर्डर बोला मतलब स्ट्रिप को मैंने वर्टिकल कंसिडर किया और उसका मोशन एंड स्ट्रिप निकाला है। ये कंसेप्ट समझ में आया सब लोगों को। नाउ इनर एक्स है तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले सॉल्व करना है। सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब वाई टर्म बाहर ले लो, सो वाई इक्वल टू 0 to 4, वाई वाला टर्म कौन सा है, ई रेज टू 2y अपॉन 4 माइनस वाई, राइट। अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई एक्स डी एक्स ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डी वाई। नाउ एक्स का इंटीग्रेशन, सो ये एज इट इज आएगा, वाई इक्वल टू 0 to 4 ई रेज टू 2y अपॉन 4 माइनस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 0 टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई डी वाई, राइट है। सो इसमें y इक्वल टू 0 to 4 ई रेज टू 2y अपॉन 4 माइनस वाई इंटू 1/2 टेक आउटसाइड, अपर लिमिट, नाउ अपर लिमिट इज x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर बोला है, रूट का स्क्वायर गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा 4 माइनस वाई माइनस लोअर लिमिट इज 0 ब्रैकेट कंप्लीट डी वाई। सो क्या आएगा, y इक्वल टू 0 to 4 ई रेज टू 2y अपॉन 4 माइनस वाई इंटू 4 माइनस वाई अपॉन 2 डी वाई। सो 4 माइनस वाई गेट कैंसल, राइट। सो 1/2 टेक आउटसाइड, सो अंदर क्या बचेगा, y इक्वल टू 0 to 4 ई रेज टू 2y इंटू डी वाई। नाउ 1/2 बोलो क्या आएगा, ई रेज टू 2y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सो ई रेज टू 2y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y इज ई रेज टू 2y, सॉरी ई रेज टू 2y अपॉन 2 लिमिट्स ऑफ y 0 to 4, so 0 to 4 again 4 take outside, sorry 2 take outside, so 2 into 2 1/4 upper limit e raised to 8 2 into 4 minus lower limit 0 e raised to 0. So what is my final answer, 1/4 e raised to 8 minus e raised to 0 is 1. So this is nothing but your final answer.